কে আনন্দ দেখি, যদিকে আনন্দ দেখি, হইল পারামাশুনি। অশোক অভয় অমৃত আধার, তোমার চরণ তয়, তাহাতে এখন বিষাদ
service saved. Okay. He's here. Yeah. Who can sing? Who do you want to sing, Guru? Huh? Who do you want to sing? You want to sing? I don't know many bhajans. I only know very few. Sure, Prabhu, do you want to sing anything? You want to sing anything? This fourth verse is just so much nectar. Gorangera tuti pada jaradhana sampada. Gorangera Dudipada Jaradhana sampada. Shejane bhakati rasa
है जी राधा कृष्ण का कैसे करेंगे आप? कौन पर हाँ कौन है चल रहा है राधा कृष्ण पुराण Radha Krishna Pranamaya Yugala Kishora Jivane Marane What you doing? Arnahi Mora Radha Krishna Pranamura Jugala Radha Krishna Pranamaya Yugala Kishora Jivane Marane Radha Krishna Pranamura Yugala Kishora Jivane Marane Haranani Mora Radha
राधे जय जय महाराज बताइए। राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते। गोकुलतारुणी मङ्गलमायिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते
$352, I think. I think it's 352. Seem all right? अरे मेरा अच्छा ही है तो सुनने सब अच्छा ही लगता है Yes. हाँ बोल 352. Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Dula Krishna Lila Jaya Jaya Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda
Hare. की जय. जय जय श्री राधे. अब गेट तो भाई नहीं आप थोड़ा भी पता बोलते हैं हाँ आप बोलो हाँ हिंदी सब समझते हैं हिंदी बोलो हिंदी बोलो आप कैसे कहेंगे? हैं आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में नहीं मैं हिंदी में बोलूँ आप इंग्लिश में बोलो ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने. श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैषयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So first of all, I offer my unlimited obeisances unto the divine lotus feet of my most worshipable spiritual master, His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. My unlimited obeisances unto the divine lotus feet of our Rupanuga Guru Varga. My humble obeisances unto the divine lotus feet of Sripad Bhaktivedanta Van Maharaj. And my respects to all the assembled devotees. So it's a great fortune that Pujapad Maharaj has very mercifully come to our humble abode to grace our place with his divine presence. In Srimad Bhagavatam, in the 11th canto, it explains when the Navayogendras, who were the 9 sons of Maharaj Rishabdev, and they completely renounced the world and were traveling all over preaching the glories of the Supreme Lord. So when they came by where Maharaj Nimi was performing sacrifices, seeing their great effulgence, Maharaj Nimi invited them and gave them a seat of honor. And he then prayed to them where he said, Vishnu Bhutani Lokanam Pavanay Charantihi, that the devotees of Vishnu, the devotees of the Supreme Lord, Vishnu Bhutani Lokanam. Charanti means they are traveling. Lokanam, all over the world. Not only in this world, but all over the universe. They are traveling. Why? Pavanaya. Pavanaya means to purify. So, this is the greatness of the devotees. That in this material world where we are so much engrossed in material enjoyment, and in fact there is absolutely no possibility of those struggling in this material world to come out of its entanglement. There is actually no way except for a devotee extending his helping hand. Just like someone who's drowning in an ocean, he cannot come out unless someone throws a rope at that person. And sometimes a person who's throwing the rope does it at great peril of his own life. But just to save that person drowning, he is ready to take the risk. So in fact, the devotees are so merciful that taking so much on their own health,
on their own physical, thing, they travel. And just like our dear Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, also Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, that how mercifully they came out of India, started traveling and took this mission of Mahaprabhu. Similarly, Maharaj also is coming and traveling around the world. So when he says Vishnu Bhutani, there are many devotees of the Lord, but not everyone has a capability to purify. Only someone who's completely renounced, who's completely nishkinchan, who's completely surrendered to the lotus feet of our Guru Varga, to their spiritual master. Only such personalities have the power to also deliver others. And I have seen in my 40 years in this line, I'm still very, very young and novice, and I've seen many, many sadhus, many, many sannyasis, many, many great preachers. And I can say that Maharaj certainly is foremost of them. Not only just because of his deep understanding of our Gaudiya Siddhanta, but more so, much more than that, his complete mood of surrender and him being so simple in his dealings and also in his own life. I've known Maharaj since 1990, when he used to live in a small room next to the temple room in Keshavji Gaudiya Math in Mathura. The room was big enough just to have a little wooden bed. It was not even a proper bed. And not even a mattress on top of it, and hardly little bit, maybe 2 or 2.5 feet for the rest of the people to sit. And the way Maharaj was that time, I still see him, he is in fact not changed. He was very simple, very sweet, very down to earth even then and even today. And same thing just like our Gurudev. Gurudev, when we met him in 1990, and that's where saw the difference, because we had, growing up in ISKCON, we saw how the sannyasis had some opulence. They had a lot of facilities. They moved around in nice cars. So there was a lot of opulence around them. But when came to Keshavji Gaudiya Math and saw Gurudev, that I could not believe that a sannyasi is so simple. Gurudev was sitting on a broken wooden chair, and for years he sat on that, even after we all met. And that's how he trained everyone under him as well. Maharaj tells us the stories of how they were trained. With such great strictness, Gurudev trained everyone. And that training was not just in Siddhanta, but training was also how to live a life very simply and without any duplicity. Gurudev, today I was listening to Gurudev's lecture given in Mathura back in early 90s, where he's telling about Guru Purnima and Sanatan Goswami. And there Srila Gurudev says that people in this world are so entangled in so many different things, conflicts, day-to-day problems, issues, fights among themselves. He says this is true of householders and most people, but it's even true of brahmacharis and sannyasis. He says even in the mutt, people are so entangled, and in one way indirectly he was chastising everyone who was sitting there, that everyone is so entangled in fighting, leg pulling, all of these things. But he says that's why we have not come to the mutt. We have come here to do bhajan. Our lives should be very simple and free from all kind of conflicts. And again, in my 40 years, I've seen many things, many conflicts, many problems, many issues among devotees. But I can say that Maharaj has always kept aloof from all of them, even though he's, in positions where someone else would be very proud and controlling, but he has absolutely no controlling mentality. He has absolutely no desire to, be executing his executive power, which he can, in his position he can do. But I have seen that even after so many years, we are from a simple brahmachari and now traveling all around the world with so many followers and extensive preaching, Maharaj is still very simple, very loving and very sweet-hearted. So this is the
characteristic of a pure devotee. And only such devotees, the Maharaj Nimi is saying Vishnu Bhutani. So such devotees have the potency to purify the rest of the world, and we can see how he is doing so much wonders across the world. So I'm very, very fortunate that he is among us today. I've always shared a very sweet relationship, and he's always come and stayed at our home. Now, of course, he doesn't get that much time, but in the past he would come stay and we would spend hours, and he would sit here. And I've also seen that many times when the speakers are there, they expect a big crowd, unless they don't feel motivated to speak. But Maharaj, whether it is one person, 2 people, 200, like yesterday also, many times we would sit in this place and there will be 3, and Maharaj with the same depth, with same absorption, will speak Harikatha. Just yesterday also in the temple, just 4 or 5 people, most of the people will say, what's the point of me doing Harikatha? Just 4 or 5 people, we can do something else. But Maharaj was so absorbed, and then when Tarun Krishna Prabhu asked a question, he was so absorbed in trying to explain that he completely forgot that it is time to, take prasadam. So this is the mood of a pure devotee, so absorbed in Harikatha and no other business. So once again, thank you Maharaj for coming. Very, very fortunate to have you here. Gaur Premanande. अच्छा विमला दीदी ने काम ना शाम का शाम ही तो हो गया दोपहर है जी समय लेता नहीं फिर जाना भी पड़ेगा ना। आपके घर में किस बजे जाना? 6 बजे। 6:30 तक निकलेंगे। 6:30 2 मिनट का रास्ता। नहीं इधर तो मठ में जाऊंगा ना। नहीं शाम करेंगे। हाँ नहीं महाराज महाराज जब तक आप जाएंगे तो आने का जाने आने में 2 घंटा लग जाएगा। कहीं तो रास्ता है यहाँ 1 घंटा जाने 1 घंटा आना। 2 घंटा यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। सचिन का घर ना यहाँ पास में है। 1 घंटा ड्राइव करके आया, आपको पता नहीं चला ना। अच्छा क्योंकि अगर आप जिस समय जाएंगे ना तो रश हो जाएगा, ट्रैफिक टाइम 1 घंटा जाना 1.5 घंटा आने में लगेगा। तो अभी आपको कमरा सब रेडी है। शाम करेंगे, बस लोग भी शाम करेंगे। बरसात भी वर्षा आने के साथ ही बरसात बंद हो गई। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्तादीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामानि तरङ्गमार्गे कृपायै त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं।
एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसीमा भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसीमा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं वैष्णवीगण सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। दो शब्द के द्वारा अपने वाणी को मैं ही विराम देता हूं। पूज्यपाद से है विष्णु प्रभु अति सुंदर रूप में भगवत भक्त की महिमा हमें श्रवण कराया। भगवद विधा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ते तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। गदाभृत स्वयं भगवान की हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा सर्वत्र विचरण करते हुए, विचरण समेत भ्रमण करते हुए और वो समस्त तीर्थ के जो है पवित्र करा देते हैं। क्योंकि पापी लोग तीर्थ आदि क्षेत्र में जाकर के स्नान आदि करते हैं और करके अपने पापों के वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए वह तीर्थ क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। मलिन समझते कि नहीं है, दूषित हो जाता है, पापियों के पाप के द्वारा दूषित हो जाता है। किंतु देखो भागवत भक्तगण उस स्थान पर जाकर के उसको क्या कर देता है, पवित्र कर देता है। इसलिए भगवद विदा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ते तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। गदाग्रज, गदाग्रज, गदाग्रज किसको कहा जाता है बताओ? है कृष्ण के एक नाम है गदाग्रज। देवकी के एक पुत्र हुआ था, उसके नाम था गद। क्या नाम बताया? गद कहा जाता है। उसके अग्रज गदाग्रज, इसलिए भगवान कृष्ण के एक नाम है गदाग्रज। ऐसे भगवान के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा सर्वत्र विचरण आदि करते रहते हैं। तीर्थ में जाकर के स्नान करने से वो पवित्र होता है, ठीक है। किंतु शास्त्र में कहा गया वैष्णव दर्शन से ही पवित्र हो जाता है। गंगार परस हईले पश्चाते पावन और दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा आदि तीर्थ में जल में स्नान करने पर पवित्र होता है, स्पर्श करने पर। जब तक गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं तब क्या आपके चित्त पवित्र नहीं हो रहा है। किंतु शुद्ध वैष्णव की चरण दर्शन करने के साथ ही साथ चित्त निर्मल हो जाता है। जिसके प्रसंग महाप्रभु पितृ श्राद्ध, पिताजी के श्राद्ध आदि करने के लिए जब गया में पधारे और उस समय ईश्वरपुरीवाद को दर्शन करके महाप्रभु भाव में डूब गए। महाप्रभु रोने लगे। उस समय महाप्रभु कह रहे हैं गया जत्र सफल अमान जतक्षण देखिलाम चरण तुम्हार। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करें। महाप्रभु कह रहे हैं हे ईश्वर पुरीपाद गुरुदेव, आपके चरण कमल दर्शन करके मेरा चित्त निर्मल हो और मेरे गया आने की वास्तवता फल मुझे प्राप्ति हुई।
क्योंकि वैष्णव दर्शन, साधु दर्शन अतीव दुर्लभ। साधु किसको कहा जाता है बताओ? Who is called साधु? साधु से कहता है जो भगवान के हृदय में धारण करने वाले। साधु यानी उसी की कहा जाता है जो भगवान की हृदय में धारण करते हैं। बोले भगवान के हृदय में कैसे धारण करते हैं? जो नाम जप आदि करते, भगवत के नाम, भगवत के नाम रूप गुण लीला आदि कीर्तन आदि करते हैं, हृदय में धारण करते रहते हैं। वो गृही हो और त्यागी हो। किवा विप्र कृपान्यासी शूद्र के ने नॉय जय कृष्ण तत्ववित्ता सही गुरु। साधु गुरु उसकी कहा जाता है जो भगवान के नाम कीर्तन आदि करते हैं, चित्त सब समय सदा सर्वदा भगवान की चिंतन आदि करते रहते हैं। देखा जाए तो महाप्रभु के जितने परिकर थे, अधिक रूप में देखा जाए सब कौन थे? सब गृहस्थ थे। श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे कि नहीं थे? किंतु श्रीवास ठाकुर के साथ क्या तुलना दे? कोई सन्यासी तुलना दे नहीं सकते। श्रीवास ठाकुर के गृह में चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा विराजमान होते थे। महाप्रभु स्वयं कहा जे मैं सदा सर्वदा 5 स्थान में रहूंगा। कौन कौन स्थान? शचीर मंदिरे सदा सर्वदा मां अपने मां शची की गृह में, शचीर मंदिरे। श्रीवास अंगने, श्रीवास जी के गृह में मैं सदा सर्वदा रहूंगा। और अद्वैत आह्वाने नित्यानंद कीर्तने और राघवेर गृह। कितने हो गए? 5 हो गए। राघव पंडित के गृह में महाप्रभु रहते थे। राघव पंडित देखो महाप्रभु के प्रति कितने प्रगाढ़ स्नेह प्रीति रखते थे। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे और राघव पंडित और उनके बहन क्या नाम दमयंती महाप्रभु के लिए इतने सुंदर द्रव्य आदि लेकर के आते थे, जिसे कहा जाता है राघवेर झूली कहा जाता है। क्या बोला? राघवेर झाली। 10-12 बैग है, झाली माने बैग भर करके महाप्रभु के लेकर के आते थे, जो महाप्रभु 1 साल तक उसके ग्रहण करे, यूज करे। और जब तक ये दोनों जगन्नाथपुर में रहते थे, महाप्रभु के सेवक गोविंद के हर रोज पूछते थे ये महाप्रभु के लिए ये वस्तु दिया कि नहीं दिया, महाप्रभु के लिए ये महाप्रभु वस्तु खाया कि नहीं खाया। यह भी छोटे से छोटे वस्तु की भी वो लेकर के आते थे। महाप्रभु शरीर पर साबुन नहीं लगाते थे। और देखो राघव पंडित क्या करते, गंगा की मिट्टी के ना उसके धूप में सुखाते थे और फिर उसके कुट कुट करके पीस देते थे। पीस करके अच्छी तरफ से छालनी से छान लेते थे और लेकर के फिर उसको पानी से लेकर के ऐसे बना लेते साबुन जैसे और महाप्रभु के लेकर देते थे। महाप्रभु की लिए देखो वो एक पत्ता होता है जिसको पाट पत्ता कहा जाता है, जूट लिप्स है, उसके सुखाते थे पानी में धूप में और सुखा करके लेकर के जाते थे। और उसके रात में
उसको भिगो पानी में भिगो देते थे और फिर सुबह महाप्रभु के देते थे, जिससे महाप्रभु की पेट जो है ठीक रहे। छोटी छोटी वस्तु के लिए वो भी सब कुछ व्यवस्था करते थे, खाने के लिए सब कुछ व्यवस्था करते थे। आप पढ़ो चैतन्य चैतामृत में, जिसके राघवेर जारी महाप्रभु के लिए क्या क्या व्यवस्था आदि करते थे, और इतनी स्नेह प्रति ममता। और श्रीवास जी के गृह में महाप्रभु सर्वदा नाम संकीर्तन आदि करते थे। श्रीवास जी भी कैसे थे? महाप्रभु एक दिन बोले, श्रीवास तुम गृहस्थ हो, तुम काम धंधा नहीं करते हो, गृहस्थ होकर के क्या करना चाहिए? कुछ तो काम करना चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए। तुम काम नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, और तुम्हारे संसार कैसे चलेगा? तो जब ये बोलने लगे, श्रीवास जी हाथ में 3 ताली मारा। 3 ताली समझते हो? 3 times ये मेक्स द क्लैप। 1 2 3। महाप्रभु कहने लगे, ये क्या तात्पर्य क्या है? बताओ, सुनाओ, इसके तात्पर्य क्या है? श्रीवास जी बोले, प्रभु यदि मुझे भोजन नहीं मिला, एक दिन मैं उपवास में रहूंगा। चलो एकादशी व्रत कर लेंगे मानो, दूसरे दिन वो भी उपवास रख लेंगे, तीसरे दिन भी उपवास रख लेंगे, और चौथे दिन यदि भोजन नहीं मिला तो मैं गंगा में जाकर के अपने को समर्पित कर दूं, माने आत्महत्या कर लूं। इतने सुनते ही महाप्रभु ईश्वर भाव में आविष्ट होकर के गीता की एक श्लोक कहने लगे, अनन्य चिंतन्त मां ये जना प्रजुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक आप लोग जानते, गीता की श्लोक है। जो अनन्य होकर के भगवान के भजन करने वाले हैं, जो स्वयं भगवान कहते हैं, उनके जोग और क्षेम दोनों ही मैं अपने सिर पर लेकर के मैं चलता हूं। जो जरूरत है मैं वही देता हूं। यहां तक भी महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास नारायण भाव में महाप्रभु साक्षात ईश्वर अभिष्ट होकर के बोले, मेरे लक्ष्मी नारायण के जो अंक साइन लक्ष्मी जो है, द कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड नारायण, लक्ष्मी देवी रास्ते में जाकर के भिक्षा आदि करे, किंतु जो मेरे ये अनन्य भक्त कभी उपवास में नहीं रहेंगे। देखो, इसलिए स्वयं महाप्रभु कहने लगे, जो एकांतिक निष्ठा होकर के भजन करने वाले, उसको मैं ही सब पालन करता रहता। ऐसे श्रीवास जी की महिमा स्वयं महाप्रभु वर्णन करने लगे, सुनाने लगे। एक बार श्रीवास जी के छोटा बेटा जो है शरीर छोड़ दिया मध्य रात्रि में, मिडनाइट। उस दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में नाम संकीर्तन कर रहे थे। इतने समय महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास आज मेरा नाम में कोई उल्लास नहीं हो रहा है, शायद तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी हुआ है, अपशकुन हुआ है। श्रीवास जी कहने लगे, प्रभु कैसे संभव है? आप साक्षात भगवत स्वरूप ही, और नाम और नामी आप एक ही हो, अभिन्नत्वात् नाम नामी, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम नाम में कोई भेद नहीं, आप स्वयं साक्षात नाम प्रभु, नाम और नामी। आप नाम कीर्तन कर रहे हैं, हमारे घर में अपशकुन कैसे हो सकता है, अनहोनी कैसे हो सकता है? महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास तुम बताओ, कुछ
कुछ तो बताओ, कुछ मुझे ऐसे लग रहे। उस समय श्रीवास जी महाप्रभु के चरण पकड़ के रोने लगे, कहने लगे प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता, आज मध्य रात्रि में मेरा छोटा बालक बेटा जो है वो ईश्वरी छोड़ दिया। दूसरी कक्षा में महिलाएं जो है सब रो रहे थे। श्रीवास जी गए, कहने लगे महिलाओं को, कहने लगे देखो तुमने यदि रोते रहो तो महाप्रभु के कीर्तन में बाधा सृष्टि हो, और महाप्रभु के कीर्तन में यदि बाधा सृष्टि हो तो महाप्रभु के कष्ट हो, इसलिए तुम लोग मत रो। और तुम लोग यदि ऐसे रोते रहो महाप्रभु के कीर्तन में बाधा सृष्टि हो तो मैं इसे सहन कर नहीं पाऊंगा, मैं गंगा में जाकर के अपने की भी समाप्ति करता हूं। ऐसे करके चैतन्य श्रीवास जी उस महिला को शांत करे। तो वही श्रीवास जी कह रहे हैं प्रभु मेरे गृह में मेरे ये छोटा बच्चा वो आज शरीर छोड़ दे। महाप्रभु देखो श्रीवास जी के प्रति इतने स्नेह प्रति रखते हैं, महाप्रभु की आंखों से आंसू आ गए। करे श्रीवास तुम्हारे पुत्र छोटा बेटा शरीर छोड़ दिया, तुम मुझे समाचार तक भी नहीं दिया। श्रीवास जी कहने लगे प्रभु आपके नाम में किसी प्रकार बाधा नहीं हो, इसलिए मैंने आपके समाचार नहीं दिया। महाप्रभु स्वयं श्रीवास जी के साथ दूसरी कक्ष में गए और जाकर के श्रीवास जी के छोटा बच्चा के जो शरीर जो मृत शरीर जो पड़ा, और महाप्रभु उनकी छाती पर हाथ रखा और रखने के साथ ही साथ उनके बालक जीवित हो गए, प्राणवायु आ गई। तो महाप्रभु पूछने लगे तुम कहां चले गए थे, क्या बात है बताओ। वो बालक बोलना शुरू कर दिया, ये प्रभु आपकी इच्छा से मेरा जन्म और आपकी इच्छा से ही मेरा शरीर है। जन्म मृत्यु तो हमारी उसी प्रकार ही होता है। जीव अपने अपने कर्म के अनुसार संसार में आ जाते हैं और अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। आपने ही बुलाया फिर मैं आ गया, तब वो इच्छा मत जीवेर जन्म मरण। हे प्रभु आप ही सब कुछ करने वाले हो। इस प्रकार बहुत सुंदर रूप में श्रीमान महाप्रभु श्रीवास जी की पुत्र के मित्र पुत्र के द्वारा जीवों की समस्त शिक्षा दे दी। शोक मोह आदि त्याग देकर के एकमात्र भगवान के भजन करना ही मनुष्य जीवन की कर्तव्य है। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनांखन भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस श्लोक में बहुत सुंदर रूप में बताया गया एक दुर्लभ वस्तु और एक सुदुर्लभ वस्तु के बारे में बताया गया है। एक दुर्लभ वस्तु क्या है, मनुष्य शरीर है कि नहीं। दुर्लभो मानुषो देहे, ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। 84 लाख जनी भटकते भटकते तो भी मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए दुर्लभ कहा गया। और इससे भी दुर्लभ क्या वस्तु है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम है। वैकुंठ प्रिय माने भगवत भक्त, भगवान की जी नित्य परिकर्जन ऐसे भक्तों की दर्शन अतीव दुर्लभ कहा जाता है। एक है दुर्लभ मनुष्य शरीर और एक अतीव दुर्लभ क्या है, भगवत भक्त के दर्शन। अति सहज रूप में नहीं होता है, इसलिए कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहे देहिनांकन भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये वैकुंठ प्रिय अर्थात भगवत भक्त के दर्शन। इसलिए भागवत में यही कहते जा रहे हैं हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, जहां भगवत भक्त के चरण आश्रय करके
भजन करें। है? पशु पक्षी ये जन्म तो मिल जाता ही है सब, है, किंतु भगवत भक्त के दर्शन और उनके सानिध्य प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। गुरु वैष्णव जब हमारे पास रहते हैं तब उसके मैं उतना कदर कर नहीं पाते, कदर समझ, उतना मैं आदर कर नहीं पाते, उनकी उसकी महिमा में समझ नहीं पाते। और वही गुरु वैष्णव जब हमारी आंखों से उजल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो हम समझ पाते हैं ये क्या चीज मुझे प्राप्ति मिला था और क्या चीज मैं खो दिया। वास्तव ये सत्य है। जीवन की अनुभूति जब तक नहीं हो तब तक आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। आंख रहते रहते आंख की महिमा हम समझ नहीं पाते, किंतु वही दृष्टि शक्ति जब चले जाते हैं तब तो हम सोचते हैं ये आंख क्या वस्तु है। तात्पर्य ये है, भागवत जो गुरु वैष्णव जब हमारे पास रहते, सानिध्य रहते, निकट में रहता हूं, तो गुरु वैष्णव की स्नेह ममता प्रीति हम अनुभव कर नहीं पाते। गुरु वैष्णव से जब हम दूर बिछोड़ जाते हैं तो सोचते हैं क्या चीज मिला मुझे, क्या चीज होया। किंतु एक बात है, जब वस्तु क्या क्या कहते हैं, वो हिंदी का जो है प्यार है ना, ये अब चिड़िया जब चिड़िया चुन गई है और पश्चात के हो क्या। आप बताओ, है खेती में आपने खेती किया अच्छी तरफ से, है, बीज भी डाल दिया, किंतु 2-3 महीने बारिश नहीं हुई, सोचने लगे आज बारिश होगी, काल बारिश होगी, तो देखते देखते 2-3 महीने बीत गए और उस समय चिड़िया जो है वो दाना चुन लिया। फिर 3 महीने के जब बारिश हुई तो क्या होगा, कुछ नहीं है। तो गुरुदेव इस कथा को ही सुनाते थे। ये वास्तव जीवन की अनुभूति यही है। स्मरण आ जाता है गुरुदेव की इतनी स्नेह प्रीति मथुरा में जब रहते थे, कितने स्नेह आदि प्रति आदि करते, साथ ही साथ शासन भी करते थे। स्नेह प्रति शासन दोनों ही ऐसे एक मधुर लगता था। हाँ समझे, किंतु आज उनसे कितने दूर बिछड़ करके आए। एक बार गुरुदेव के साथ इटाली गए थे, मेरा याद आता। प्रातः काल में गुरुदेव कुछ भक्तों के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए। समुद्र के तट पर गुरुदेव चल रहे थे। एक कुत्ता जो है और कुछ दूर आगे गए और जगह भाव 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 करने लगे। फिर वो लौट करके आते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो कुत्ते फिर वो समुद्र के तट जाकर के भाव 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 करते रहे। तो गुरुदेव एक भक्त के पूछा, बहुत साल की बात है, मेरे याद है, और ये कुत्ता क्यों भोग रहा है? वो बार बार समुद्र के तट पर जाते हैं और लहरियां आती है ना, और उस तरफ जाते हैं भाव भाव करके, फिर कुछ समय के बाद लौट करके आते हैं। गुरुदेव कहने लगे 3-4 बार ये कुत्ते जा रहे हैं आ रहे हैं, क्यों? तो एक भक्त ने कहा, गुरुदेव इधर क्यों होते हैं? हो सकता है ये कुत्ते जो बूढ़े हो गए,
है। इसलिए उसके मालिक ने क्या की, यहां पर छोड़ दिया है। कुछ लोग करते हैं, छोड़ देते है। कुछ ज्यादा वो पायखाना आदि करते हैं, वो करते हैं, इसकी कौन देखभाल करे, तो उसको क्या की छोड़ दे। वो बता रहे थे, मेरे याद है मैं गुरुदेव के साथ ही था, छोड़ दे। इसलिए किंतु देखो कुत्ते वो सोचने लगे, ये मेरे मालिक जो है अभी स्नान कर रहे हैं समुद्र में, वो मालिक कब लौट कर आएंगे और मुझे कब ले जाएंगे है? इसलिए कुत्ते बार बार वो समुद्र के उस तरफ जा रहे हैं, और किंतु तुम आया ही नहीं उसके मालिक। इतने जब भक्त लोग कहने लगे है, गुरुदेव बिल्कुल ये स्तब्धीभूत हो गया, स्टांट हो गए गुरुदेव। स्टांट, गुरुदेव कुछ नहीं बोले है। हमने देखा गुरुदेव की केवल आंखों से आंसू की धारा आ गई है। गुरुदेव की आंखों से आंसू आ रहे। इसके पश्चात गुरुदेव और कुछ नहीं बोला कर। और दूसरी दिन तो और दिनों तो गुरुदेव भक्त के साथ जैसे वो मॉर्निंग वॉक के बाद कोई प्रश्न उत्तर आदि करते थे, किंतु गुरुदेव उस समय जो है कुछ नहीं बोले। और गुरुदेव आकर के अपने कार में बैठे है, और गुरुदेव अपने स्थान पर आए। इसके पश्चात पता नहीं भक्त लोग सबके मन में थोड़ा ही किसी एक दूसरी भावना प्राप्त हुई। अरे क्या बात है, हर रोज गुरुदेव प्रसन्न होकर कहते अच्छा तुम्हारे कोई प्रश्न है पूछो, गुरुदेव कहते थे ना है, कोई प्रश्न है गुरुदेव कहते थे। किंतु गुरुदेव उस समय जो है ना कुछ पूछा ना कुछ किया, उस भाव में अभिष्ट हो गए। अच्छा, इसके पश्चात 10-11 बजे गुरुदेव के जो उस समय हरि कथा होती है, तो गुरुदेव कथा में बैठे और देखो गुरुदेव अपने गुरु की महिमा वर्णन करते हुए है, और रोने लगे, कहने लगे मेरे गुरुदेव जब विराजमान थे कितने स्नेह प्रति आदि करते थे है? और वही उदाहरण के देकर के गुरुदेव समझाने लगे है? वो ऐसे एक सुंदर विरह और मिलन की कथा मैं क्या वर्णन करूं है? तो उस समय गुरुदेव कह रहे थे जब गुरु वैष्णव हमारे सानिध्य में रहते हैं, निकट रहते हैं, तब हम उसकी महिमा समझ नहीं पाते है? तात्पर्य क्या है? वो हमें कब ऐसे भावों के प्राप्त कराएंगे, कब मुझे ले जाएंगे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में कह रहे हैं, कवे लोक नाथ मोरे संगे लया जावे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, है न कि होइबे मोर नरम सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। बहुत सुंदर है, बंगला कीर्तन है। नरोत्तम दास ठाकुर ये कीर्तन करे, सुनियाची साधुओं के बोले सर्वजन, ये श्लोक कीर्तन में करे। ये कप मेरे गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी है मुझे पकड़ करके रूप गोस्वामी पाजनी रूपमंजरी के चरण में मुझे समर्पित करेंगे, और रूपमंजरी व रूप गोस्वामी हमें प्रिय नर्म सखी आदि जो है ललिता विशा आदि की निकट ले जाएंगे। वो लोग मुझे कब
मुझे अत्यंत सुमधुर शासन वाक्य आदि के द्वारा मुझे शिक्षा आदि प्रदान करें। तो अब मैं राधा जी की ठीक से सेवा करने के मैं योग्य बनूं। ये नरोत्तम दास ठाकुर भावना कर। तात्पर्य यह है, ये गुरु वैष्णव की कृपा, अनुग्रह, शासन आदि हमारे जीवन के लिए एक विशेष, एक अमूल्य संपद है वेरी वैल्यूएबल थिंग है, किंतु उसका हम समझ नहीं पाते। जीवन की उसी का यही है। हम इसलिए आज ये कह रहे हैं, ये श्रीवास ठाकुर की महिमा और क्या नाम, राघव पंडित की कथा, और तीसरी शची देवी की कथा भी है और नित्यानंद और अद्वैत आचार्य, ये सभी गृहस्थ ही थे, किंतु महाप्रभु के प्रति इतने स्नेह प्रति आदि रखते हैं। हम आज एक विष्णु प्रभु के घर में आए, इनकी देखो कितने महिमा है। इनके पिता माता कितने गुरुदेव के प्रति स्नेह आदि रखते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है। वास्तव इनकी महिमा इनके सामने बोले तो ये लोग कहेंगे ज्यादा करके, तो मैं देखा कितने लोग, इनके माता पिता विष्णु प्रभु और क्या पूछा आरती दी। मैंने कहा कभी हास परिहास इनके साथ कर देता है तो विष्णु की आरती कौन करता? तो अपराध ना नहीं मेरा। इनके साथ इतने प्रति सख्त भाव आदि होने के नाते कभी कभी हास परिहास भी करते रहता। इनके बेटा जब आता हूं, इनके बेटा के बारे में मैं पूछता रहता हूँ, क्या नाम वो, माधव जी। इनकी परिवार के साथ इतने स्नेह प्रति, इसलिए गुरुदेव जब जाते थे इनके घर में ही रहते थे। तब उस समय तो मत नहीं था, रमन बिहारी गौड़ी मठ नहीं था। गुरुदेव आप लोग के घर में रहते थे, कितने स्नेह प्रति। हमारे कमरे में रहते हैं, हमारे कमरे में। और जब भी गुरुदेव used to come to our home, to stay in our room, and used to say, बेटी I've taken your room, I've taken your, घर कहते हैं कमरे, कहते थे तुम्हारे घर में रह रहे हैं। बहुत सुंदर। गुरुदेव के साथ जब जाते थे हम लोग, तो गुरुदेव के उस समय अगल बगल में रहने वाले हम लोग ही थे। दो छात्र हम लोग ही थे, ज्यादा ब्रह्मचारी कहाँ था। माधव महाराज, तीर्थ महाराज, हम लोग गुरुदेव के साथ ही चलते रहते थे। अगल बगल में रहने वाले यही बस। बहुत देखा अपने आंख, ये गुरुदेव कैसे प्रति आदि स्नेह ममता प्रति आदि आप लोग के, और आप लोग भी गुरुदेव के प्रति एक लौकिक सद्बंध प्रति रखते, जिसके तो ब्रजवासियों के भाव जो, नाम तो विष्णु है किंतु ब्रज के कितने भाव है। और गुरुदेव भी कैसे हास परिहास आदि करते थे, इनके पिता माता स्नेह प्रति कैसे करते थे, बहुत सुंदर लगता था उस समय। आज वो स्मृति हो जाता है इनकी दर्शन से। हम ये कहते हैं, देखो जिनकी दर्शन से गुरुदेव की स्मरण होता है, उससे अधिक हमें क्या चाहिए। किसी जन्म में भगवान की सेवा मिले, राधा जी की सेवा मिले ना मिले, वो दूसरी बात है, किंतु जिस भक्तों के दर्शन से गुरुदेव के स्मरण आ जाता है, हृदय द्रवीभूत कर देता है, इससे अधिकार क्या बोले बताओ। वास्तव में सत्य है।
गुरुदेव की कृपा किसी जन्म में मिले ना मिले वो भी बहुत दूर है, किंतु जो गुरुदेव की प्रियजन जो है इन लोग के साथ कितने गुरुदेव अत्यंत लौकिक सद्बंधुवत प्रीति आदि करते थे। अपने आप में देखा है, इनकी माता पिता है कैसे गुरुदेव की सेवा आदि करते थे, और इनके घर में गुरुदेव भी बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कथा भी कीर्तन करते थे। है ऐसे जसोमती विवाह वरी से सो आलोक प्रवेश इसी श्लोक के व्याख्या आदि करते थे, सुंदर रूप में मधुर भाव। मुझे याद है जब सभी भाव के उद्गार कर देते थे उस समय गुरुदेव। बहुत सुंदर सुंदर बहुत पुरानी स्मृतियां जो है हृदय में प्रकट हो जाता है। वास्तव आप लोग की दर्शन से कितने आपके जो छोटे भाई क्या नाम है? ब्रजेश। वो भी जब मठ में आते मैं उनके साथ भी किसी स्नेह प्रति देखता, बहुत सुंदर। और आपके बहन जो है वृंदा जो है, सब आपके परिवार के लोगों के साथ इतने स्नेह प्रति जनी ना जनी उन सब पूर्व जन्म के एक नित्य संबंध है। आज में है हमारी प्रभु जी जो है विमला दीदी और प्रभु जी सुशील प्रभु जी है, इनके घर में भी गुरुदेव रहते थे। जब मैं आता था इनके घर में मैं रहता था, जहां जहां पर ये घर लिया मैं उस घर में ही जाता रहता छोड़े नहीं पीछा। आज कम से कम कितने साल गए अमेरिका आ रहा हूँ, 25 साल हो गए। 2000 से 2001 से मैं आ रहा हूँ। नहीं सन्यास लेने के बाद अमेरिका आया था। है सन्यास के पहले जो है मैं वो यूरोप कंट्री और ऑस्ट्रेलिया आदि गए थे। सन्यास लेने के बाद इधर आया था, मेरे याद है। हाँ आपके घर में स्नेह ममता प्रीति कैसी है? आप लोग के दर्शन से मेरे वो सारे स्मृति आ जाती है। इतना ही मेरे यही लगता है लौकिक सद्बंधवत प्रति ब्रजभक्ति प्राप्ति करने के लिए सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में बताया कुछ करना नहीं है, बोले लौकिक सद्बंधवत प्रति हो जाए बस। समझ में आया? लौकिक सद्बंधवत प्रति क्या है? ये मेरा परिवार के एक सदस्य है। तद दुखे दुखित तत्सुखे सुखितम है, इसको कहा जाता है लौकिक सद्बंधवत प्रति। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा आदि में लौकिक सद्बंधवत प्रति नहीं है। समझने के प्रयास करें, सिद्धांत इसमें। आप वैकुंठ में लौकिक सद्बंध प्रति नहीं है, क्योंकि वहां पर भक्तों के हृदय में ये भाव रहता है ये भगवान है। क्या है? ये भगवान है। वो भगवान जब होता है उसमें दो एक गुण रहता है, एक क्या बोले सर्वज्ञता और मुग्धता है, ये रहता है। किंतु देखो सर्वज्ञता समझते नहीं, अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं। ये भगवान है, सब कुछ जानते हैं, ये सर्वज्ञता। और मुग्धता इनोसेंट, कुछ नहीं। किंतु देखो वैकुंठ आदि में इस सर्वज्ञता की भाव वहीं पर प्रकाश होते ज्यादा, और गोलोक वृंदावन में बिल्कुल मुग्ध हो, इनोसेंट बेबी। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं आमियो ना जाने गोपी गौन दुहार रूपे गुने दुहार हरे मोर मन है। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मैं अपने जोग माया के द्वारा मैं अपने सर्वज्ञता को मैं भूल जाता हूं। आमियो ना जाने, मैं नहीं जानता हूं ये गोपियां कौन है, और गोपियां भी मुझे नहीं जानती है ये मैं कौन हूं। दुहार रूपे गुणे दुहार हरि मोर मन, एक दूसरे के रूप गुण आदि के द्वारा आकृष्ट हो जाते। जैसे इस संसार में जड़ जगत में है, एक लड़का एक लड़की के प्रेम कैसे होता है? अपने
गुण रूप आदि के द्वारा, है चरित्र आदि के द्वारा। देखने को सुंदर है और लड़का लड़की को साथ प्रेम कर लेते, स्वाभाविक है ये, लौकिक कहा जाता है। उसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं, आमियो ना जाने गोपीगण, दुहार रूपे गुने दुहार हरे मोर मन। एक दूसरे की गुणों की तरह आकृष्ट हो जाते है। और जोगमाया कोरिवेक आपन प्रभावी, ये सब कार्य कौन कराते हैं? जोगमाया करा देते है। यही तो है। किंतु वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा में रहने वाले जो भक्त लोग होते हैं, वैकुंठ में जैसे विशेषसेन, गौड़ूर है, अयोध्या में हनुमान आदि के परिकर बताया जाता है कि द्वारिकापुरी में उद्धव आदि ये सब भक्तगण रहे वहां पर। किंतु सभी के हृदय में क्या है? कृष्ण के प्रति एक ऐश्वर्य बुद्धि है, भगवत बुद्धि है, ये कृष्ण भगवान है। किंतु वृंदावन में जितने भी भक्त है, दस सख वात्सल्य आदि माधुर्य रसों के भक्त कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि नहीं रखते। रक्त पत्रक 10 रस के भक्त माना जाता है, सुवर्ण श्रीदाम आदि शक्कर रस के भक्त माना जाता है, और वात्सल्य रस के भक्त नंद यशोदा, और माधुर्य श्रृंगार रस के भक्त गोपियां। किंतु ये लोग कभी कृष्ण के भगवान नहीं मानते। देखिले ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य, कृष्ण के सारे भगवत्ता ऐश्वर्य के देख करके भी उनके भगवान नहीं मान रहे। यही तो कहा, सखा सख भावे करे स्कंदे आरोहण, तुमी कौन बड़ लोक आमी तुमी सम। माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन, प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेदस्तुति होइते मोर हरे मोर मोहन। इसी कहा जाता है, ये जो बंगला प्यार चैतन्य चरितामृत बता रहे हैं, ये सब माधुर्य रस की भक्त। सुबल श्रीदाम कृष्ण के साथ कैसे रखते हैं? विशुद्ध सख भाव रखते हैं, सखा भाव रखते, कांध में चढ़ जाते, अपने उच्छिष्ट जो है खिलाते हैं, अपने उच्छिष्ट। सखा सख भावे करे स्कंदे आरो, तुम्ही कौन बड़ो लोग झगड़ा भी कर लेते झगड़ा करके उनके साथ ऐसे अंडे संडे बात भी करते रहते, गाली गलौज भी करते रहते, साली ऐसे करके है। देखो सखा सखो स्कंदे आरोहण। और गोपियां, मां यशोदा क्या करती है? कृष्ण करे माता मरे पुत्र भावे करे ताड़न भत्सन। मेरे मां यशोदा मुझे पुत्र समझ करके मुझे कभी डंडा लेकर मुझे शासन भी करते हैं, कभी सुंदर मीठी बात वचनों के द्वारा मुझे उपदेश भी देते, ये करना है, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है। देखो कैसे ब्रज के कितने सुंदर मधुर भाव है। मैया मैंने ही माखन खाए हो, और फिर करे मैया मैंने ही माखन खाए। कितने सुंदर ये स्मृत भाव। समय हो गया ना, अभी 2:30 बजते जा रहे। कितने सुंदर ये स्मृत ब्रज की कथा है। और गोपियां क्या करती है? कृष्ण के साथ कैसे मान अभिमान और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो किसी के बोलना संभव नहीं है। तो चोर है, लंपट है, कैसे कैसे शब्द आदि बोलते हैं। स्वयं कृष्ण करे ब्रह्मा जी की जो स्तुतियां जो है, वेद मंत्र, मुझे उतने प्रसन्नता नहीं करते, मैं उतने प्रसन्न नहीं होता हूं। किंतु गोपियां जब मुझे गाली देती है, क्या गाली देती है? स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल है, जो जिससे सारे वेद निकले हुए हैं,
सारे तत्व सिद्धांत जब से होते, सर्व विश्व के सृष्टि करने वाले, और उसकी गोपियां क्या कहती है? तो मूर्ख है, तो लंपट है, स्त्री लंपट, इतने इतने शब्द आदि बोलते रहते हैं। चलिए, और कृष्ण भी ऐसी लीला करते हैं, ब्रज में शोर मचाया है, जैसे बोलिए, ब्रज में शोर मचाया कृष्ण, अरे नहीं, और चूड़ी बेचने आया, है ना, भज ब्रज में, हाँ हाँ हाँ, बता, श्याम चूड़ी बेचने आया, हरि को भेष बनाया, श्याम ब्रज में चूड़ी बेचने आया, है, कितना सुंदर भाव देखो, ऐसे भाव कहीं नहीं मिलेगा, ब्रज छोड़कर कहा है, इसे छली अस्वीकार है। राधा ने सुनी, ललिता ने सुनी, ये राधा ने सुनी, ललिता से बोले, है वो मणिहारी के बुला करके लाओ, है राधा जी मान कर, फिर है बोले देखो मैं लाल नहीं लूंगी, है ये नहीं लूंगी, मैं श्याम चूड़ी बोलूंगी। कितना सुंदर ये भाव है ना, आप कीर्तन करो बहुत सुंदर लगता, आप बोले कीर्तन करते आनंद लगता है। ये समस्त भाव ब्रज छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा, है आज ब्रज की भावना के हमें, इसलिए कहीं कहते हो ना, राधा जी के एक श्लोक मैं हर रोज कहीं भी जाता हूं, एक श्लोक हर रोज मैं कहता हूं, राधा करवचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदंक विलसित मधुरस्थली के, राधा जसो मुख मत्त खगावली के, राधा विहार विपीनम रमतांग मनो में। कितना सुंदर भाव, राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, संग राधा जी की हस्त कमल के द्वारा, कर्मणे हस्त, उनकी हाथों की द्वारा, हस्त पृष्ठ हाथों के द्वारा प्रसिद्ध है, वो समस्त बल्लरी यानी स्वर्ण लताएं जो है कैसे संवर्धित होता है। राधा जी की हस्त कमल की स्पर्श होने के साथ ही साथ वो लताएं क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती है। और जब कृष्ण जब वृंदावन में जब पधारते हैं, वो समस्त लताएं से मानो राधा जी के द्वारा शिक्षित है, दे आर कंप्लीट ट्रेन्ड विद श्रीमती राधिका। जब कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हुए, कृष्ण यूज्ड टू कम इन वृंदावन है, तो राधा जो वो समस्त बल्लरियां जो है माने लताएं जो क्या करती है, राधा जी के द्वारा शिक्षित है, माने स्वयं राधा जी वो बल्लरियों की शिक्षा देकर के रखी है। बोले कैसे? बोले गोविंद जब पधारे उनको क्या करो, स्वागत करो, है देखो वो बल्लरियां वो लताएं क्या जो थे ऐसे उड़ जाती है और कृष्ण के स्वागत करती है, स्वागतम 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 स्वागतम, है हजारों एक नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी स्वर्ण लतिका जो है वृंदावन में सुशोभित हो जाते हैं और सब कृष्ण के उसी प्रकार वेलकम करते रहते, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, वृंदावन इतने सुशोभित होता है। इसलिए राधा करवचित बल्लभ पल्लव बल्लरी के, अथवा कहा जाते हैं ये शाखाएं जो है वृक्ष के शाखाएं जो है, जिस शाखा में स्वयं राधा जी अपने हस्त कमल के द्वारा स्पर्श कर चुके हैं। जैसे राधा जी कुसुम पुष्प आदि चयन कर रहे हैं, एक हाथ में डाल को जो है पकड़ के रखे और दूसरे हाथों के द्वारा उस शाखाओं से जो है एक एक पुष्प की चयन करे। तो राधा जी की हस्त कमल की स्पर्श से वो समस्त शाखाएं क्या होते हैं, प्रफुल्लित हो रहा है। क्यों? राधा जी की हस्त कमल की स्पर्श ये कोई साधारण बात नहीं,
इसके राधा करवचित पल्लव बल्लरी के वृंदावन इसी वजह से सुशोभित होती है? वो समस्त शाखाएं इतने मन मुस्कान के भांति प्रफुल्लित हो जाता है, क्या वर्णन करे। और दूसरी कहते हैं क्या, दूसरी लाइन में राधा राधा पदंक विलसित मधुर स्थली के, वो वृंदावन राधा जी के चरण कमल के द्वारा सुशोभित हो जाते। जिस चरण कमल के दर्शन के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग के भी दुष्प्राप्य होता है, संभव नहीं होता है। कृष्ण वंशी वादन करने के साथ ही साथ देवता लोग क्या करते हैं, अपने देवियों के साथ दिव्य विमान में बैठ जाते हैं। बोले चलो आज दोनों की रासलीला दर्शन करेंगे। दिव्य विमान गतयो अनुसन्न माना। अरे कृष्ण की वेणुध्वनि सुन करके देवता लोग और देवी लोग दिव्य विमान में बैठ जाते हैं। उन्हीं बोले आज वृंदावन में चलते हैं, दोनों के दर्शन करेंगे। बोले जब आते हैं दिव्य विमान, जब आते थे वृंदावन में और उस समय चंद्रमा के दर्शन करके वो भी अपने पतिदेव के सामने मूर्छित हो जाते। ऐसे वर्णन है भागवत में, दिव्य विमानो गतयो अनुसन्न माना। ऐसे दिव्य कहा वृंदावन की ऐसी मधुरिमा वर्णन करते जा रहे। कृष्ण वंशित ध्वनि करते हैं और गोपियां जब रासस्थल में एकत्रित हो जाते हैं और उस समय समस्त देवता लोग अपने पत्नियों के साथ दिव्य विमान में बैठ करके सारी वृंदावन की आकाश में छा जाती है। किंतु राधा जी की चरण कमल के दर्शन अतीव दुर्लभ कहा जाता है। किंतु आज कह रहे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, देखो वृंदावन में जाओ, अप्रकट गोलोक वृंदावन में देखो सर्वत्र राधा जी की चरण कमल की चिन्ह आपको दिखाई पड़े। ये राधा राधा पदांक विलसित मधुर स्थली के, राधा जसोमुख मत्त खगावली के। वृंदावन में जाओ, देखो समस्त पक्षी आदि जो है, खगावली माने पक्षी समुदाय जो है क्या करते हैं, मोर, मयूरी, पीकॉक, पिहन, हंसकार, सारस हंस कारंड, ये लोग क्या करते, राधा जी के नाम लेकर के कीर्तन करते। कुजत कोकिल हंस सारस, कुजत कोकिल हंस सारस गणाकुल मयूरा कुले। कितना सुंदर भाव है। वृंदावन के जितने पक्षी आदि है क्या बोलते हैं, राधे 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 राधे, और कुछ नहीं बोलते। वृक्ष आदि क्या बोलते, वृंदावन के वृक्ष के मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हुई। यही तो है, कितना सुंदर ही मधुर वृंदावन है। और फिर प्रभुनंद से लास्ट श्लोक में, लास्ट लाइन में क्या बोल रहे, राधा विहार विपिन रमतांग मनोमीत। जहां पर राधा कृष्ण राधा जी अपनी सखी के साथ विहार आदि करते, भ्रमण आदि करते हैं, वन भ्रमण लिखा गया शास्त्र में है। और जहां पर राधा जी अपनी सखियों के साथ वो समस्त वृंदावन में स्थान पर जब विहार आदि करते, भ्रमण आदि करते रहते, अथवा अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ अनेक प्रकार जो है गुज्जाति गुज्जतम लीला विलास आदि करते हैं, और उस स्थान में सदा सर्वदा मेरे मन डूबे रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम है। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय,
महारानी की जय, राधा जी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। बहुत सुंदर। थोड़ी सी एक शब्द बोलता हूँ, ये लोग गुरुदेव के कमरे में जाकर बैठ जाते थे। इनके छोटा बच्चा जो है, क्या नाम, माधव, जाकर मेरे कमरे में घुस जाता था और मेरे साथ जो है वो भजन करता था, छोटा बच्चा। So one time I was in Mathura and we would always go to Gurudev's room, and I just realized that Madhav is not with me. I thought that I started looking for him. Only 2 years. Yeah, just 2.5 years. And I started looking for Madhav, and I was asking all the devotees, have you seen Madhav? Have you seen? I started going worried. And then, right outside the kitchen, some of the senior devotees were having prasad. And someone said, I saw Madhav over there. So when I went in that area, I saw Maharaj was having prasad and Madhav was having prasad in the same thali with Maharaj. When we used to go to the mud, we did not even know where he was. Because we would go from one room to another. And some Such a, I mean, I always have आगे वो दृश्य भी मेरा आविष मेरे हृदय में आता है, बहुत सुंदर। आप ही की प्लेट से बैठ के चौकड़ी मार के खा रहा था। Yeah, when he met him, he never repossessed his plate. So like, just imagine like 3 years old boy just sitting. बोलो वृंदावन बिहारी। तो स्मरण आ जाते आपके, आप लोग के दर्शन, आप लोग की कथा स्मरण आ जाता है। इतना मधुर समय था गुरुदेव। हाँ, कैसे किसी जीवन में दोबारा गुरुदेव इसी तरह से दिल्ली का सब कुछ इनके घर से शुरू हुआ। दिल्ली का जितना गुरुदेव की कृपा से बहुत मैंने अच्छा। तो बनाया। हाँ, नहीं जरूर जन्म जन्मांतर के आप लोग गुरुदेव के साथ नित्य संबंध है, तब तो ही होता ही है, आगे भी रहेगा। नित्य ही रहेगा। संबंध तो नित्य होता है। निताई चरण सत्य तार सेवक नित्य, निताई पद सदा कराश। आप लोग जरूर गुरुदेव की जो है नित्य परिकर है, हो सकता है हमें कृपा करने के लिए है, दर्शन दे रहे। हमें राधा कृष्ण भी नहीं चाहिए, बस गुरुदेव। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा।